کہ لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں اضافہ AIQI کی مجموعی شرح 230 ریکارڈ ملکی اور عالمی سطح پر فضائی آلودگی میں شہر کا پہلا نمبر ہے۔ گرد و غبار درجہ حرارت میں بھی کمی کے باوجود شہر کی فضائی آلودگی میں کمی نہیں آ سکی۔ گرد و غبار درجہ حرارت میں کمی کے باوجود شہر کی فضائی آلودگی میں کمی نہ آ سکی۔ AIQ کی مجموعی شرح 230 ریکارڈ کی گئی۔ شہری موسم سے پریشان ہیں۔ ملک بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پہلا نمبر۔ دنیا بھر میں بھی فضائی آلودگی میں شہر سر فہرست ہے۔ CERP آفس 252، شاہراہ قائد اعظم 220، پاکستان انجینئرنگ سروس 243، US قونصلیٹ میں 241 AQ ریکارڈ کیا گیا۔ DHA فیز 8 میں 207، ٹھوکر نیاز بیگ 208، جوہر ٹاؤن 205، سید مراتب علی روڈ 199 AQ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ درجہ حرارت کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت سلیکشن کمیٹی اور مینٹورز کا اجلاس، ٹیم کی حالیہ کارکردگی اور فٹنس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سلیکشن کمیٹی نے ٹیم میں متوقع تبدیلیوں سے محسن نقوی کو آگاہ کیا۔ نئے کھلاڑیوں کی کارکردگی جانچنے پر اتفاق۔ چیئرمین PCB محسن نقوی پاکستان کرکٹ کو فتوحات کے ٹریک پر واپس لانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ قومی ٹیم کی حالیہ کارکردگی پر سلیکشن کمیٹی اور مینٹورز کا 2 گھنٹے طویل اجلاس نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے پہلے مینٹورز سے علیحدہ میٹنگ کی اور پھر سلیکشن کمیٹی ارکان اور مینٹورز کے ساتھ مشترکہ ملاقات کی۔ طویل اجلاس میں ٹیم کی حالیہ کارکردگی اور فٹنس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سلیکشن کمیٹی نے ٹیم میں متوقع تبدیلیوں بارے چیئرمین PCB کو آگاہ کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور مینٹورز کا نئے کھلاڑیوں کی کارکردگی جانچنے کا عمل رواں سیریز کے اختتام تک مکمل کرنے پر اتفاق ہوا۔ کھلاڑیوں کے فٹنس کے عمل کو بھی رواں سیریز کے ختم ہونے تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے پچز کا معیار بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں سلیکشن کمیٹی کے اراکین اور مینٹورز نے تجاویز دیں۔ سلیکشن کمیٹی کے ارکان عاقب جاوید، اظہر علی، علیم ڈار، حسن چیمہ، ایڈوائزر بلال افضل، ڈائریکٹر ڈومیسٹک عبداللہ خرم نیازی نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان، مینٹور شعیب ملک، مصباح الحق، وقار یونس، ثقلین مشتاق اجلاس میں شریک ہوئے۔ مینٹور سرفراز احمد اور سلیکشن کمیٹی کے رکن اسد شفیق ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان۔ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ اور سرفراز احمد کو آرام دینے کا فیصلہ۔ شان مسعود کپتان جبکہ سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے آخری 2 ٹیسٹ میچز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ نوجوان مہران ممتاز، کامران غلام، حسیب اللہ، محمد علی، نعمان علی اور ساجد خان کو ٹیسٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ شان مسعود کپتان اور سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے۔ کھلاڑیوں میں عامر جمال، عبداللہ شفیق، حسیب اللہ، کامران غلام، مہران ممتاز، میر حمزہ، محمد علی، محمد حریرہ شامل ہیں۔ محمد رضوان، نعمان علی، سائم ایوب، ساجد خان، سلمان علی آغا اور زاہد محمود بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 15 اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا۔ گریٹر اقبال پارک میں اربوں کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ پنجاب حکومت نے آڈٹ رپورٹ 2020-21 پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ گریٹر اقبال پارک منصوبے میں 3 ارب تک مالی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ پنجاب حکومت کی صوبائی اسمبلی میں جمع کرائی گئی آڈٹ رپورٹ کے مطابق 8 کروڑ 44 لاکھ کے اخراجات کا ریکارڈ آڈٹ رپورٹ کو فراہم نہیں کیا گیا۔ گریٹر اقبال پارک کی تعمیر میں 21 کروڑ 98 لاکھ سے زائد ممنوع اشیاء پر غیر قانونی استعمال کیے گئے۔ 17 کروڑ 58 لاکھ سے زائد کی ادائیگیاں نیشنل ہسٹری میوزیم کے ملازمین کی تنخواہوں کی تقسیم بغیر کاغذات کی تصدیق سے ہوئی۔ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گریٹر اقبال پارک افتتاح پر 1 کروڑ 12 لاکھ سے زائد خرچ کیے گئے۔ 2 ارب 6 کروڑ سے زائد مالیت کے تعمیراتی کام ٹھیکیداروں کو دیے گئے۔ نیشنل ہسٹری میوزیم کی سروسز کے لیے 7 کروڑ 85 لاکھ سے زائد اضافی ادائیگی کی گئی۔ پنجاب حکومت کا الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ورلڈ بینک سے قرض لینے کا فیصلہ۔ ورلڈ بینک پنجاب حکومت کو $300 ملین سافٹ لون دے گا۔
पंजाब हुकूमत वर्ल्ड बैंक का कर्ज लोन 25 साल में वापस करने की पाबंद होगी। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इंसदादे समूह के लिए इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सॉफ्ट लोन पर मामलात तय पा गए। 5 साल ग्रेस पीरियड होगा। पंजाब हुकूमत को समूह के तदारुक की मद में 2% शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट्स भी फराहम करेगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था कि वर्ल्ड बैंक इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कंसल्टेंसी भी फराहम करेगा। आलमी बैंक इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लिथियम बैटरीज की प्रोडक्शन और डिस्पोजल पर गाइडलाइन फराहम करेगा। वर्ल्ड बैंक का वफ्द सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात भी कर चुका है। शहर में गिरा फरोश माफिया का राज है। सरकारी निफनामे में दर्ज कीमतों का इत्तलाक मुमकिन नहीं हो सका। दुकानदार मनमानी कीमत पर महंगे दामों सब्जियां और फल फरोख्त करने लगे। सब्जियां और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफे और जायद नरखों में फरोख्त से शहरी परेशान हैं। आलू 77 की बजाय 120 रुपए किलो, प्याज 125 की बजाय 180 रुपए, टमाटर 70 की बजाय 100 रुपए, लहसुन 380 की बजाय 620 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अदरक 930 की बजाय 1200 रुपए किलो, लीमू 95 की बजाय 200 रुपए, गाजर 80 की बजाय 140 रुपए, फलियां 145 की बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त हो रही हैं। फलों में केला 120 की बजाय 200 रुपए दर्जन, सेब 220 की बजाय 300 रुपए किलो, नाशपाती 400 की बजाय 500 रुपए, अमरूद 150 की बजाय 200 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। अंगूर 285 की बजाय 450 रुपए, अनार 300 की बजाय 400 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। मॉडल टाउन इत्तफाक अस्पताल नसीराबाद और असलम स्ट्रीट इचरा के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सेक्रेटरीट ऑफिस नाबा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं। रोड पर तारीकी से हादसात के खदशात बढ़ गए। शहर के अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश का काम सुस्त रवि का शिकार है। मॉडल टाउन इत्तफाक अस्पताल के सामने मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। नसीराबाद के इलाका में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब पड़ा है। इलाका मकीन साफ पानी को तरस गए। मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी बहाल कराएं। असलम स्ट्रीट इचरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। इलाका मकीन साफ पानी के असूल के लिए दरबदर हो गए। शिकायत के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मकीनों की जानब से हुकाम बाला से फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल कराने का मुतालबा किया गया। सेक्रेटरीट ऑफिस नाबा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। स्ट्रीट लाइट्स न होने से रोड पर अंधेरा छाने से हादसात के खदशात बढ़ गए। शहरियों ने इंतजामिया से मसला हल करने का मुतालबा किया है। सब्जाजार जुगिया नागरा में बिजली के लटकते तारों का मसला हल न हो सका। आए रोज तार टूटने करंट लगने के वाकयात रोनुमा होने लगे। मकीनों का कहना था कि लेस्को इंतजामिया को मुतअद्दिद बार तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई हैं। अहली इलाका ने लेस्को हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अफशा पार्क शादीपुरा में सहूलियात का फकदान, गलियां जिबोहाल और ढलवानदार मकीनों का गुजरना महाल हो गया। सेवरेज का भी नाकस निजाम है। गंदगी के ढेर, तोफान और बीमारियां फैलने लगी। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि इलाके के मसाइल हल करवाएं। शहर की खूबसूरती के लिए अंडरपासेस की तज़ीन और आराइश का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। पीको रोड, ब्रिज, चिल्ड्रन अस्पताल, अंडरपास समेत मुतअद्दिद अंडरपासेस खस्ता हाल हो गए। शहरी कहते हैं कि अंडरपासेस की खूबसूरती बरकरार रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। देहात गाँवों इंतजामी गफलत के बायस खस्ता हाली नाकिस सिवरेज निज़ाम से दो चार है। लोडर गाड़ियों, रिक्शों और ट्रक की आमदरफ्त से सड़क की हालत भी अबतर है। मजीद जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा, बताइएगा। फैज़ रोड नज़ायत गाँव पर मौजूद हूँ। जो इंतज़ामी गफलत के पास रोड की बात की जाए तो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। सिवरेज निज़ाम में इंतहाई मुतासिर है, जिसकी वजह से यहाँ पे आमदरफ्त जहाँ पे मुतासिर हो रही है वहाँ इलाका मकीन के भी काफ़ी शिकवे हैं। उनका ये कहना है कि जब बारिश होती है तो सड़क में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। सिवरेज से मिला पानी यहाँ पे जमा होने की वजह से गंदगी का ढेर जहाँ पे होता है वहाँ पे ताफुन बदबू उठने से कई बीमारियां भी इलाके में फैल रही हैं। अगर बात की जाए सड़क की खस्ता हाली की तो इलाका मकीन का कहना है कि कई बार शिकायत करवाई गई हैं, लेकिन बद से बदतर तरीन होती जा रही है इस रोड की हालत, क्योंकि यहाँ पे ट्रक और लोडेड गाड़ियाँ, रिक्शा भी गुजरते हैं, जिसकी वजह से ये सड़क जो है बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार है। और यही कहना है इलाका मकीन के। कई बार हादसात आ चुके हैं, आए रोज़ जो है वो बाइक सवार ख़ास तौर पे हादसात का शिकार होते हैं इस रोड से गुजरते हुए। और रात के औकात में नामुमकिन हो जाता है इस रोड से राहगीरों का पैदल गुजरना, बिलखसूस बच्चों और औरतों का जो है यहाँ से गुजरना नामुमकिन। जी फातिमा खान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का 99वां इजलास हुआ।
रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने फाटा से प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। प्रोग्राम में घर बनाने के लिए 2,80,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस प्रोग्राम के लिए ड्राफ्ट एप्लीकेशन 76,000 से जायद हैं। गवर्निंग बॉडी के इजलास में फाटा को मुआहिदा साइन करने की इजाजत दे दी गई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक के अमल को बरवक्त और तेजी से जारी रखने की हिदायत की। सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात उज़्मा जाहिद बुखारी व दीगर शरीक थे। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक का N119 का दौरा। बागबानपुरा, चाइना स्कीम, भगतपुरा, धर्मपुरा, शादीपुरा में अवाम के खुशी और गम में शरीक हुए। मतलूब जट ने लीगी रहनुमा के एजाज में इस्तकबाल या भी दिया। मजीद इस रिपोर्ट में। मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने NA119 की मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कमल लियाकत, एडवोकेट लियाकत आवान, मलिक वसीम, हाजी कैसर, राना वकास हमरा थे। यूसी 125 में लीगी रहनुमा साजदा वसीम की बहन और यूसी 128 में फजले इलाही के भतीजे की वफात पर इजहार अफसोस किया। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने यूसी 161 में हाजी इरशाद के बहनोई और यूसी 24 में मस्कीन शाह के चचा की फौतगी पर इजहार ताज़ियत किया। महर गुडू, मोहम्मद अजमल, मास्टर निसार, हाजी फरियाद, मोहम्मद काशिफ, फरमान शाह, मोहम्मद सईद समेत दीगर हमरा थे। ये मेरा घर है। मैं तो अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ कि मेरे ऐसे बाजू चोइसा की शक्ल में, मतलूब की शक्ल में यहाँ पे मौजूद हैं। ये पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, अपने इलाके की खिदमत करते हैं, अपनी शहर की नुमाइंदगी करते हैं, अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। TP 152 शादीपुरा में मतलूब जट ने अली परवेज मलिक के एजाज में इस्तकबालिये का एहतमाम किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खुराक मलिक वहीद, नासिर जट, मलिक आजम, अफजाल शाह, मोहम्मद अली, चौधरी अली जट भी शरीक हुए। सादत अली, हाजी अकरम जट, मलिक टीपू, मलिक अनवर, मियां अकबर समेत दीगर ने शिरकत की। लीगी रहनुमाओं ने अवामी मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42, लाहौर।